Good morning, students. Today I am going to start a new chapter number 5, language of chemistry. So, students, chemistry has its own language. If you can understand the language of chemistry, then chemistry will be very easy for you. For example, if I write a symbol C, so here C means carbon in chemistry. Then if I write O means oxygen. So in chemistry it has a different language. So now come to the chapter. Our first topic is chemical reaction. What is chemical reaction? A chemical reaction is a process in which a substance or substances undergoes a change to produce a new substance or substances having new properties. तो केमिकल रिएक्शन क्या है? ये एक प्रोसेस है, एक क्रिया है जिसमें जो सब्सटेंसेस हैं वो प्रोसेस होके न्यू प्रोडक्ट बनाती हैं. वो जो न्यू प्रोडक्ट्स बनती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं फ्रॉम द substances that take part in the reaction. Now what are the substances that take part in the reaction called? So come to the next, that is the reactant. तो reactant क्या है? वो substances जो chemical reaction में involve हो रही हैं. So the definition is the substance that take part in a chemical reaction is known as reactant. Next is product. The new substance formed in a chemical reaction is called a product. तो जो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड होती हैं केमिकल रिएक्शन में उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट. फॉर अ रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू द मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, these are the reactant and reactants are always written on the left hand side. Then magnesium oxide, it is a product and product can be always be written on the right hand side. Now we will see the activity of the magnesium bonds in the presence of oxygen to understand the reactant and the product in a chemical reaction. First, this is a magnesium strip that is cut from the magnesium ribbon. This is a magnesium ribbon. This is a Bunsen burner, watch glass, and we will put the magnesium oxide in the watch glass. Now the magnesium strip will burn in the presence of oxygen. The oxygen is present in the air, we know. So जब हम उसको बर्न करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा. ठीक है. फॉर दिस टेक अ पेयर ऑफ टंग और हमने मैग्नीशियम स्ट्रिप को होल्ड किया है. इससे हमें इतनी बड़ी स्ट्रिप की ज़रूरत नहीं है. सो वी विल ब्रेक द स्ट्रिप. वी विल नीड ओनली अ स्मॉल स्ट्रिप. नाउ होल्ड दिस स्ट्रिप विद द पेयर ऑफ टंग एंड what happened? We burn this strip. What do you observe? When we burn this magnesium strip, we will see a dazzling white flame. एक white flame जो है वो रिबन में से निकल रही है. What will behind? Nothing but the ash or white ash. White ash क्या है? It is a magnesium oxide. We will place the magnesium oxide in the watch glass. So from this activity what we will observe that कि हमने मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया in the presence of oxygen, we will get a new product and that is the magnesium. Next is conditions affecting the chemical reaction. तो वो कौन कौन सी conditions हैं जो chemical reaction को affect करती हैं? फर्स्ट है हमारी reactant should be in close contact. जो reactant है वो एक close contact में होनी चाहिए chemical reaction में. Here they give the example that sodium metal react violently with the cold water when they are in close contact with each other. कि जो सोडियम मेटल है जब हम उसको कोल्ड वाटर के साथ मीन्स वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, दे रिएक्ट विद ईच अदर एंड दे फॉर्म द सोडियम हाइड्रोक्साइड विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. मीन्स कि जब सोडियम और कोल्ड वाटर रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो एवोल्यूट होती है. सो
फ्रॉम दिस वट वी कंक्लूड दैट कि रिएक्टेंट्स जो हैं उनमें एक क्लोज कांटेक्ट होना चाहिए। जैसे कि हमने एक्टिविटी देखी थी मैग्नीशियम रिबन की और ऑक्सीजन की। अगर हम मैग्नीशियम को जब बर्न कर रहे हैं तो अगर तो बर्नर में और मैग्नीशियम रिबन में क्लोज कांटेक्ट होगा तभी जो रिएक्शन है वो हो पाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। सो रिएक्टेंट शुड बी इन अ क्लोज कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट इज़ द फिज़िकल स्टेट ऑफ द मैटर, कि फिज़िकल स्टेट जो है रिएक्टेंट की वो भी अफेक्ट करती है। फिज़िकल स्टेट मीन्स कि वेदर इट इज़ अ सॉलिड, लिक्विड और इन द गैसियस मीडियम। सो केमिकल रिएक्शन टेक पार्ट मोर इजली व्हेन द रिएक्टेंट आर इन सोल्यूशन फॉर्म। तो जब जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो सोल्यूशन की फॉर्म में होते हैं तो जो केमिकल रिएक्शन होती है वो बहुत ईजिली हो जाती है। फॉर एग्जांपल एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट टू फॉर्म द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट एंड एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो दैट मीन्स कि जब हम बेरियम क्लोराइड जो है, ठीक है, उसको हम रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन जो है बेरियम क्लोराइड का, जब वो रिएक्ट करता है एक्वस सोल्यूशन सोडियम सल्फेट के साथ, तो हमें क्या मिलता है, हमें प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं बेरियम सल्फेट के। व्हाट इज़ प्रेसिपिटेट? जो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होती है, ठीक है, और साथ में क्या निकलता है बाय प्रोडक्ट, सोडियम क्लोराइड। सो ये सोल्यूशन फॉर्म में है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट के, दे आर मोर मोबाइल। मोबाइल मीन्स दे आर फ्री टू मूव, hence they can come in contact with each other easily because they are in the liquid phase. So the physical state affect the chemical reaction. Next is temperature. Some chemical reaction do not take place at the room temperature, कि जो कुछ reactions होती हैं वो room temperature पे नहीं होती, ठीक है, means कि उन्हें higher temperature चाहिए या lower. The reactant have to be heated to a certain temperature to start the reaction. तो उस केस में हमें क्या रिएक्टेंट्स को हीट करना पड़ता है अप टू द सर्टन टेम्परेचर, अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ताकि जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो सके। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर। जो मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, इट ऑलवेज रिएक्ट विद द हॉट वाटर। व्हेन इट रिएक्ट विद द हॉट वाटर it will give rise to magnesium hydroxide with the evolution of hydrogen gas. Next, fourth, presence of light. Certain chemical reaction can occur only in the presence of light. कुछ chemical reactions होती हैं वो सिर्फ light की presence में ही होती हैं, ठीक है। The best example photosynthesis. Photosynthesis occur in the presence of light only. Here silver chloride breaks down in the presence of sunlight to give the silver and chlorine. Presence of catalyst. कैटालिस्ट, व्हाट इज़ अ कैटालिस्ट? कैटालिस्ट क्या है? एक सब्सटेंस जो कि रिएक्शन रेट को चेंज करता है, ठीक है। अ कैटालिस्ट इज़ अ सब्सटेंस दैट चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज। तो कैटालिस्ट क्या एक सब्सटेंस है जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है, लेकिन ये खुद जो है वो चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल द प्रेपरेशन ऑफ अमोनियम गैस फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड आयरन इज़ यूज्ड एज द कैटालिस्ट। जब हम अमोनिया हमने प्रिपेयर करना है फ्रॉम द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, वी यूज़ द आयरन एज अ कैटालिस्ट। आयरन क्या करता है? उसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देता है। सिक्स्थ एंड द लास्ट इज इलेक्ट्रिसिटी। सम केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ जो केमिकल रिएक्शन होती हैं दे टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी ब्रेक द वाटर, ठीक है, when we pass the electricity through water, it breaks down into the hydrogen and oxygen, and it is also known as the electrolysis. Here not a sunlight, here is the electricity. We will pass the electricity from the water and the water breaks into the hydrogen and oxygen. So these are the conditions that affect the chemical reactions. Okay students, thank you very much.